मैं जो रियलाइज करता हूँ लोगों में एक प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट थिंक पेशेंटली, लाइक अगर उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इट्स अ लॉन्ग गेम, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. साइकोलॉजी इज सो इम्पॉर्टेंट. अगर हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, things can go exactly the way we have planned. I was reading books, I was going to gym, I was doing meditation, everything was clear, like I knew. So one of those times I read about this young 11-year-old kid who basically figured out कि stocks कैसे pick करना है. वो एक $1 million कंपनी में अगर पैसा लगा दे तो $1 billion कंपनी बन जाए. Any guesses who is it? Hello everyone watching this on your commutes, in your pajamas or taking a break in the office. Say hi to your boss. This is Simran, your host today, and I'll be your guide on this journey of trading and investing. This series is called the XM Trade Talk, where we break down the ABC of trading for you. The best part is we'll be inviting experts from this community whom you know and trust, and they'll be sharing their first-hand knowledge and stories about trading with you. आज हम समझेंगे the emotions which traders go through during the ups and downs of the market. And ये समझने के लिए we have the incredibly talented Kalyan Kumar with us, who has around 200K on Instagram and goes by the name Indian Stock Market Guide. Hi Kalyan, how are you? I'm good. How are you, Simran? I'm great. Okay. So, are you ready for the first series? Yeah, for sure. This is very interesting, to be honest. Psychology पे ज़्यादा channels पे बातें नहीं होती. So this is going to be very, very pivotal for them. So without wasting time, let's start it. For sure, let's do it. So Kalyan, I'll really like to know कि आपकी journey कैसे थी? How did you start trading? Please share. Sure. तो सबसे पहले तो मैं एक इंजीनियर हूँ, and basically I was not happy with what I was doing, and I realized that very early, but I was no way of getting out of that. ठीक है. तो उसके बाद I was into an IT company, and मैं वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा था. देन आई गॉट अ चांस जहाँ पे मुझे कनाडा में वर्क करने मिले, मॉन्ट्रियल कनाडा में, एयर कनाडा के लिए काम कर रहा था. देन दैट टाइम आई रियलाइज कि ना मुझे खुशी इंडिया में मिल रही थी, ना मुझे कनाडा में मिल रही है. सो इट्स नॉट, द जॉब इज नॉट हैप्पी. द जॉब इज द थिंग. या सो आई रियलाइज कि आई हैव टू डू समथिंग, बट आई हैड द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट वाज रिक्वायर्ड टू गेट आउट ऑफ दैट मैट्रिक्स. आई वुड से कि आई वाज रीडिंग बुक्स, आई वाज going to gym, I was doing meditation, everything was clear, like I knew. So one of those times I read about this young 11-year-old kid who basically figured out कि stocks कैसे pick करना है, and he at that age whatever he was earning part time job करके जो भी करके he was putting that money for long term investing. ठीक है. And now ऐसा है कि वो एक $1 million कंपनी में अगर पैसा लगा दे तो $1 billion कंपनी बन जाती है. Any guesses who is it? No, I really don't know. Okay, he is Mr. Warren Buffett. And I read a book called Mr. Warren Buffett Way. It's a yellow page का book, छोटी सी किताब है. And when I read it, मेरा दिमाग खुल गया. I was like, okay, I can associate myself with this guy. Even though he is a huge guy, right here, the things he has done is amazing. But I could associate my passion with this guy's passion, which was about stock market. कि कंपनी फिगर आउट करो एंड उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करो, यू आर अ ओनर, ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ ओनर. These all things were very new to me and the concept was amazing. So I kind of loved it. I figured out. उसके बाद मुझे जब थोड़ा दिमाग खुला, I started investing long term play, positional trading and all that. Left the job there and came back here. I realized कि मुझे कुछ और करना है अपने साथ. तो कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया. उस टाइम पे टिकटॉक वाज बैंड, ओके, एंड इंस्टाग्राम वाज पिकिंग अप. एक रील्स स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली. एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि यार है तो पोटेंशियल इस चीज में कि अगर मैं वीडियो डालूं तो हो जाए, बट कॉन्फिडेंस नहीं था. तो आई स्टार्टेड विद अ पर्सन, गुंजन नाम है उनका, वो अहमदाबाद में रहती है. एंड आई सेड कि हम दोनों पार्टनर करते हैं, एंड दिस इज हाउ वी विल डू इट. लाइक मैं कंटेंट बताऊंगा, यू विल जस्ट मेक द वीडियो एंड लेट्स सी वेयर इट गोस. एंड थिंग्स हैपेंड एक के बाद एक, एंड टुडे वी आर एट 200K. हमारे व्यूअर्स के लिए आई हैव अ क्वेश्चन कि आप अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी एंड आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी थी उसके कुछ इनसाइट्स या कुछ सीक्रेट्स शेयर करना चाहेंगे? फॉर श्योर. तो बेसिकली मैं जो रियलाइज करता हूँ लोगों में एक प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट थिंक पेशेंटली, लाइक अगर उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इट्स अ लॉन्ग गेम. ठीक है. एंड आई स्टार्टेड विद पोजिशनल ट्रेडिंग, व्हिच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग. मतलब आप एक स्टॉक को खरीदोगे एंड देन यू होल्ड इट फॉर, लेट्स से कि 1 साल के अंदर अंदर यू सेल इट. ठीक है.
यू एक पोजीशन बना के उस स्टॉक को पिक किया, एक अच्छा खासा नंबर लिया, एंड देन यू मेक अ प्रॉफिट, यू गेट आउट ऑफ इट 15-20% बना. इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड फॉर पीपल फॉर जस्ट गेटिंग इनटू द ट्रेडिंग थिंग. So we'll dive into today's topic, that is trading psychology. Can you tell what it is exactly? ठीक है, तो बिफोर आई टेल यू देयर इज अ अमेजिंग स्टोरी, फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल विल लव इट, ठीक है. तो द थिंग इज 2006 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिडान वाज प्लेइंग एंड इट वाज बेसिकली इटली वर्सेस फ्रांस, ठीक है. तो फ्रांस की तरफ से जिडान था एंड इट वाज हैपनिंग इन जर्मनी. बहुत बड़ा कंपटीशन, एवरीबॉडी वाज वाचिंग इट. तो क्या हुआ कि जिडान ने पहला गोल मारा एंड देन उसके बाद एक और गोल इटली की तरफ से आया and it was 1-1, ठीक है. But then there's a player, I'm not sure if I'm taking his name rightly, Materazzi, something like that, ठीक है. And this guy, he knew कि Zidane अगर रहेगा फील्ड पे तो हम पक्का हार जाएंगे. Italy knew it, ठीक है. And France was doing well, and वो क्या किया, वो आया and Zidane की सिस्टर के बारे में जो हॉस्पिटलाइज थी उसके बारे में कुछ बोला उसने, ठीक है. And Zidane knew कि ये गलत है एंड वो थोड़ा आगे गया, देयर इज अ शॉट, ठीक है, दोनों आपस में खड़े हैं एंड उसने बोला कुछ एंड जिडान थोड़ा आगे गया एंड देन ही फेल्ट दैट एंगर, ही केम बैक एंड ही हेड बम्प्ड हिम, ठीक है. वो जो हेड बम्प किया दैट इज ऑल ओवर द न्यूज, उसके बाद जो अगले दिन का न्यूज़पेपर था, बट बिकॉज ऑफ दैट उसको रेड कार्ड मिल गया एंड ही हैड टू लीव इट, ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी. अगर जिडान ने अपने आप को कंट्रोल किया होता, ठीक है, तो वो उस टाइम का वर्ल्ड कप जीत जाते. इटली वन दैट टाइम बिकॉज जिडान वाज आउट. He was the hotshot player for France, and this is exactly what we need to understand. Psychology is so important. अगर हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें, things can go exactly the way we have planned. But that is what people are getting it wrong. कई बार उनको समझ में नहीं आता, they overtrade, and sometimes जब पोजीशन लेना है तब लेते नहीं है, डर जाते. So this is important. So this is what I want to talk about. That's a very good example. You know, to relate in just one story, I could understand what it is exactly. So Kalyan, what are the emotions, you know, which the traders go through when they're starting their journey? Downfall aata hai, pickup hota hai. So what are those emotions? Actually, all the emotions, all the shades of emotion that I can think of happens during the trading part, and we will go through everything. But I will speak about the three most important. HFG. होप, फियर एंड ग्रीड, ठीक है. होप इज व्हेन यू थिंक कि अच्छा अब अच्छा होगा, ये ट्रेड अब लेना चाहिए, इवन दो यू हैव लॉस्ट, वो डे अच्छा नहीं जा रहा, स्ट्रेटजीज आर नॉट वर्किंग, यू आर स्टिल बेटिंग ऑन इट कि नहीं अब अच्छा होगा. दैट्स अ बैड थिंग. ग्रीड तब जब ऑलरेडी आपके 10-15-20% बन गए फिर भी आप होल्ड करके रखे हो क्योंकि आपको लगता है कि और अच्छा हो सकता है. That's again a greed, not a good thing, ठीक है. And fear is जब पोजीशन लेना चाहिए था, when everything is going wrong, right, but still you save your capital and फिर वो that is not working for you. So it's three basic very emotions that people have to keep intact so that they make money trading में. Yes. ये emotions तो आपने बता दिए, which is quite like HFG, quite sorted. But ये emotions को manage कैसे करें? Okay. तो 2011 में एक स्टडी किया गया था जिसमें पाया गया कि जो ट्रेडर्स है ना उनको हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है. द रीजन इज कि बहुत सारे इमोशन से दे गो थ्रू ड्यूरिंग द ट्रेडिंग प्रोसेस. एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, एंड दिस ऑल बंडल्स अप एंड उनका हेल्थ डिटोरेट होने लगता है. माय एडवाइस इज, अगर इफ यू आर समवन जिनको नहीं जम रहा, इफ यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, यू टेक कंट्रोल ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी आफ्टर द ट्रेड एंड probably it is affecting you a lot, ठीक है, आपके फिर day to day life में it is affecting you, stay away from trading for a certain amount of time, I would say. Take a 90 days of break and it's a detox for you, ठीक है. I know a lot of people will hate me for this, comments में बहुत hate आएगा, but then it is must, ठीक है. बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि लोग ट्रेड करते रहते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम 10 दिन लगातार ट्रेड करेंगे, एक दिन तो ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा. That's not how things work, ठीक है. मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, ठीक है. कमा रहे हो, ग्रेट, ब्रावो, बट इफ यू आर नॉट, देन ऑल्सो दे डोंट केयर, द मार्केट डजंट केयर, ठीक है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड देन यू स्टे अवे फ्रॉम मार्केट फॉर अ सर्टेन टाइम, ठीक है. फॉर अदर्स हु आर नॉट यू नो इनटू दिस पूरी तरीके से, माय एडवाइस इज कि रीलर्न थिंग्स, बिकॉज इफ इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू देन इट इज समथिंग दैट यू कैन रीलर्न, व्हिच इज 100 times more difficult than learning new things, because you have to forget what you have learned and you have to start new things fresh, which is difficult, ठीक है, but it is achievable. अब उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक डेमो अकाउंट लो एंड उस पर ट्रेड करो, ठीक है. डेमो अकाउंट में आपकी कोई रियल कैश यूज नहीं होता, ठीक है. पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं. डेमो अकाउंट से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, एंड इट्स द सेफेस्ट वे टू डू इट. पहले आप वहां पे सीखो एंड देन गो अहेड, रियल लाइफ में करो फिर.
Yes. So ये जो डेमो अकाउंट है, how Hmm. do you get the access to it? ओके सो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो मार्केट में हैं, बट समथिंग दैट आई पर्सनली यूज इज एक्सएम. रीजन इज कि मैं बहुत मल्टीपल चीजों पे काम करता हूँ. लाइक अगर मुझे गोल्ड इन्वेस्टिंग करना है, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, अगर मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करना है, मुझे अगर करेंसी में ट्रेड करना है, बिटकॉइन वगैरह अगर ये भी करना है, बहुत कम बिटकॉइन वगैरह में अगर 1% 2% का पोर्टफोलियो, आई एम जस्ट लेटिंग नो कि किया जा सकता है. एक प्लेटफॉर्म जो सब कुछ करता है वो एक्सएम है. ठीक है, एक्सएम पे आपको बेसिकली एक फायदा ये भी मिलता है कि आपको वहां पे लर्निंग मटेरियल्स भी मिलते हैं जो आपके लिए आप उससे सीख सकते हो चीजें, एंड उसके बाद उसको रियल लाइफ में यूज कर सकते हो. कॉपी ट्रेडिंग भी होती है, किसी के अगर अकाउंट में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसको कॉपी कर सकते हो. तो बहुत सारे फीचर्स हो. एंड आई लव स्टॉप लॉस वाला फीचर कि अगर आपने एक स्टॉक से 10-15% ज्यादा कमा लिया, ठीक है, अब उसको इंटैक्ट रखने का तरीका है स्टॉप लॉस लगाना. सो दैट कि कल को मार्केट अगर गिर भी जाए ना और आप किसी काम में बिजी भी हो तो भी वो स्टॉप लॉस विल मेक श्योर कि वो ऑर्डर प्लेस हो जाए एंड हाँ वो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाए तो आप प्रॉफिटेबल रहो. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे ब्रोकर्स नहीं सोचते. एक्सएम रियली गुड, मैं यूज करता हूँ एंड आई पर्सनली एडवाइस पीपल टू डू दैट. So that is a really good tip which you have shared. I hope users पे help आएगा. And we got a lot of knowledge. At least I got to learn a lot of things from you. So now we'll move on to our next section, which is the fun with forex section. Okay. And आपको 200 के followers है of course Instagram में, so you might be getting a lot of DMs, right? Yes. तो newbies के कुछ थोड़े silly questions होते हैं, some basic questions which we have jotted down here. And हमारे पास ये emojis है. Okay. If you think like you don't want to answer the question, you can use these. Okay. And आप answer Can I see them? Oh, yeah, all course. shades of it. Yeah, all shades of We have the emotions. whole WhatsApp keyboard here. Okay, fine. So Great. you can answer them. ठीक है. And if you don't want to answer, we have this for you. So Okay. let's start. For sure. Let's do it. So the first question is, can the market shut down? Okay. मार्केट शटडाउन हो सकता है अगर इन केस ऑफ जायंट meteor hits अर्थ एंड सारी ह्यूमन काइंड मर जाए, then definitely बंद हो सकता है, बट अदरवाइज इट्स प्रीटी सेफ. Great. So the second question is, अगर मैं जॉब क्विट कर दूं तो ट्रेडिंग से मल्टी मिलियनर बनने में कितना टाइम लगेगा? ओके, ठीक है. तो इट विल हैपन बट इट टेक्स डिसिप्लिन. तो अगर डिसिप्लिन है, स्ट्रेटेजी सब कुछ तैयार है एंड यू आर डूइंग इट राइट इन योर ओन वे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम. And moving on to the last one, why do we consider forex? मतलब इसमें बेसिकली ऐसे लिखा है कि इंडिया में कम ऑप्शंस है क्या स्टॉक मार्केट पे जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं? Okay, this and I think yeah, India has lot of options, but then forex एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप करेंसीज के ऊपर ट्रेड कर सकते हो एंड 24 आवर्स खुला रहता है, फ्लेक्सिबल है. ठीक है, एक्सएम जैसा जो अगर प्लेटफॉर्म है अगर आप वो यूज़ करते हो तो कस्टमर का सपोर्ट भी मिलता है. ओवरऑल एक अच्छा तरीका है पैसे बनाने का. इवन मार्केट 9 to 3 चलता है, 3:30 एंड देन उसके बाद बंद हो जाता है. फॉरेक्स आप कर सकते हो इफ यू लर्न, और ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रेटजी यूज करना है. So I think it's a good win-win situation if you want to do it. So that's why you should do forex. So that's it for our first episode. We are wrapping up and I hope आपको भी काफी सारी नॉलेज मिली होगी जितनी मुझे मिली है. तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि काफी सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट्स आने वाले हैं हमारे चैनल पे. So keep learning, stay disciplined and happy trading. So signing off for episode 1. Follow us for more such interesting episodes.